This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and I'll be preaching the message in English, and Pastor Persis Hanna of India will be translating the message into Hindi. और आज की सुबह सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने मैसेज वचन को लेकर आता हूँ। मेरा नाम पास्टर जॉन विग्नेस अमेरिका से, और मुझे ट्रांसलेट करेंगे पास्टर पर्सिस सैम इंडिया से। The title of the message is, By Faith, Rahab Perish Not. By faith, Rahab perish not. In the world of sports, each sport has its Hall of Fame. The heroes of the football gridiron are enshrined in the Football Hall of Fame in Canton, Ohio. The heroes of the baseball diamond are enshrined at the Baseball Hall of Fame in Cooperstown, New York. Did you know that God has a Hall of Fame? God's Hall of Fame is Hebrews chapter 11. This has enshrined the greatest heroes of the Christian faith. I could not think of a greater honor than to be enshrined in God's Hall of Fame. और आज का वचन का जो शीर्षक है वो है विश्वास के द्वारा राहाब। राहाब के बारे में हम सब जानते हैं, जो राहाब वेश्या थी, विश्वास के द्वारा वो नाश ना हुई परंतु बचाई गई। विश्वास के द्वारा राहाब वेश्या बचाई गई। और हम सब जानते हैं, जब हम कोई खेल की बात करते हैं, संसार में जब खेल की बात करते हैं, हर एक गेम का एक हॉल ऑफ फेम होता है। हर एक गेम का, जब हम फुटबॉल के जो हीरोज ग्रिडिरियन का बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक हॉल ऑफ फेम है ओयो में। और जब हम बेसबॉल डायमंड के उसका बात करते हैं तो वहाँ पर भी फेम है कूपरस्टाउन न्यूयॉर्क में। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का भी अपना एक हॉल ऑफ फेम है। और आइए उसको हम पढ़ते हैं इब्रानी उसका अध्याय 11 में। विश्वास के द्वारा, विश्वास वो हॉल ऑफ फेम है परमेश्वर का, जिससे हम परमेश्वर को उत्साहित कर सकते हैं, परमेश्वर को जीत सकते हैं, परमेश्वर से करीब आ सकते हैं। I want to concentrate on one member of God's Hall of Fame, Rahab the harlot. For those of you that don't know, harlot means prostitute. In Hebrews chapter 11, verses 30 and 31, it says, By faith, the walls of Jericho fell down, and they were encompassed about 7 days. By faith, the harlot Rahab perished not with them who believed not when she received the spies with peace. I want you to concentrate on the words, by faith, Rahab perished not. By faith, Rahab perished not. और आज मैं आपको एक उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो विश्वास के लिए एक अच्छा उदाहरण है। इब्रानियों की पत्री में हम उसको देख सकते हैं, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, विश्वास जो है, विश्वास के द्वारा। राहब के बारे में हम सब जानते हैं, राहब एक वैश्या थी। तो जो उसका राहब जो है एक वैश्य थी, हम सब जानते हैं। राहब यरीहो में थी और वैश्य थी, लेकिन विश्वास के द्वारा वो बचाई गई। इब्रानी उसका 11वां अध्याय और 30 और 31 वचन में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से यरीहो का शहर पना, जब वह 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वे गिर पड़ी। और विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट न हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है विश्वास ही से, विश्वास के द्वारा राहब वेश्या नष्ट नहीं हुई। I'm not going to read all of Hebrews chapter 11, but let me tell you of some of the members of God's Hall of Fame. The Holy Spirit always introduces the members of God's illustrious Hall of Fame with the words, by faith. Why? In Hebrews chapter 11, it says, but without faith, it is impossible to please him. For he who come to God must believe that he is, and he is a rewarder of those that diligently seek him. Without faith, it is impossible to please him. Therefore, the way to please God is with faith. The way to please God is with faith. And that faith must be in Jesus and what he did at the cross. This is why the Holy Spirit had the writer of Hebrews introduce each member with the words, by faith, because it pleases God. This is why these people are in God's great Hall of Fame, their faith. We could call it God's Hall of Faith.
और हम पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, पूरा जितना भी इब्रानी है उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो विश्वास को जो है प्रकाशित करते हैं, जिनके द्वारा हम विश्वास का अच्छा उदाहरण को देख सकते हैं। विश्वास ही से बहुत बार पवित्र शास्त्र में विश्वास ही से इस वचन को इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि हम इब्रानी का उसका 11 का 6 में पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पर हमने पढ़ा, तो हम देख सकते हैं कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना मुश्किल है, अनहोना है। तो इसीलिए यदि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है विश्वास करना। और विश्वास किस पे? जो यीशु मसीह ने किया, और जो यीशु मसीह, विश्वास यीशु मसीह पे, और जो उसने क्रूस पर किया। और इसलिए पवित्र आत्मा आज जो है इब्रानी को जिसने लिखा, उसके द्वारा हम सबसे बताना चाहता है कि विश्वास केवल एकमात्र रास्ता है जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक रह सकते हैं। I'm going to paraphrase Hebrews chapter 11 a little. By faith, the elders obtained a good report. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. By faith, Enoch was translated to heaven and never saw death. By faith, Noah built the ark and saved his family. By faith, Sarah bore Isaac, the child of promise, when she was beyond childbearing age. By faith, Abraham offered up Isaac to God. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. By faith, Jacob blessed both the sons of Joseph and worshiped, leaning on his cane. By faith, Joseph, when he was dying, commanded that his bones be brought into the promised land. By faith, Moses chose to suffer affliction with the people of God than enjoy the riches and pleasure of Egypt. Then we get to Rahab in Hebrews 11 in verse 31. By faith, Rahab, the harlot, perished not. I want to say that again. By faith, Rahab perished not. और यहाँ पे बहुत बार लिखा हुआ है, जब हम इसको 6 के आगे से पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा। विश्वास ही से जो वहाँ के जो भी बड़े लोग थे, उन्होंने अच्छा वहाँ का सुना। विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर को केन से उत्तम बलिदान दिया। विश्वास ही से हनोक स्वर्ग में उठाया गया, उसने मृत्यु को नहीं देखा। विश्वास ही से नूह ने वो जो नाव थी उसको बनाया और परिवार बचाया गया। विश्वास ही से सारा ने इसहाक को जन्म दिया, जो वाचा का बेटा था, वाचा का बच्चा था। और ऐसी उम्र में जब नहीं हो सकता था, तब उसने विश्वास ही से उसको पाया। विश्वास ही से अब्राहम ने इसहाक को परमेश्वर के लिए दे दिया। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को हालेलुया आने वाली चीज़ों के बारे में बताया और उनको आशीष किया। विश्वास ही से याकूब ने यूसुफ को, हालेलुया, उसके दोनों बेटों को जो है आराधना करने का तरीका को बताया। विश्वास ही से यूसुफ जब वो मर रहा था, उसने वहाँ जो वाचा का जगह था उधर से अपनी जगह लाने, अपनी हड्डियों को लाने को कहा। विश्वास ही से मूसा ने जो मिस्र के लोग को, वहां मिस्र में से लोगों को छुड़ा कर लेकर आया। विश्वास ही से राहब वैश्या नष्ट नहीं हुई। मैं एक बार और इस बात को बोलना चाहूंगा जो हमने पढ़ा 11:31 में, विश्वास ही से राहब वैश्या नष्ट नहीं हुई। Think of the names on the list: Abraham, Isaac, and Jacob, the big three. Many times in the Bible, God is described as the God of Abraham and Isaac and Jacob. Then there's Abel, Enoch, Noah, Sarah, Isaac, Joseph, Moses. And then there's Rahab, the harlot, Rahab, the prostitute. How can that be? Did God make a mistake? Did God make a mistake and put a prostitute in his hall of fame? Did he? I tell you, God did not make a mistake. He never does. Rahab is in God's hall of fame for one reason: her faith.
और जो नाम अभी अभी हमने लिए उसके बारे में थोड़ा सोचिए। सबसे पहला जो नाम है अब्राहम, इसहाक और याकूब का जब हम नाम लेते हैं तो परमेश्वर के वचन में हमने कई बार पढ़ा है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। काफी बड़ा नाम। और उसके बाद एब हाबिल है, हनोक है, नूह है, सारा है, इसहाक है, यूसुफ है, मूसा है, इन सब के नाम हम देखते हैं। और आखिर में राहब वैश्या का हम नाम देखते हैं। तो क्या परमेश्वर से कुछ गलती हुआ? एक राहब वैश्यावृत्ति करने वाले, उसको परमेश्वर ने यहाँ पर कहा, क्या परमेश्वर से कोई गलती हुआ? नहीं, हमारे परमेश्वर से कोई गलती नहीं हो सकता। वहां पर राहब को उस हॉल ऑफ फेम में, उस जगह पर रखने का एकमात्र कारण था उसका विश्वास। हालेलुया। The story of Rahab should encourage us. If God can use Rahab, then God can use us. If God can save Rahab, then God can save us. If Rahab's faith pleased God, then our faith uh, can touch and please God. और यहाँ पर राहब को रखने का एक कारण था ताकि हम सब उत्साहित हो जाएं इस बारे में कि यदि परमेश्वर राहब को इस्तेमाल कर सकता है तो वो हमें भी कर सकता है। यदि वो राहब को बचा सकता है तो हमें भी बचा सकता है। यदि राहब का विश्वास परमेश्वर को खुश कर सकता है तो हमारा भी विश्वास परमेश्वर को खुश कर सकता है। Let's look at who Rahab was. Rahab was a harlot. Rahab was a prostitute. Rahab lived in the city of Jericho. In fact, her house was built on the outer wall that surrounded Jericho for protection. It is thought that her window overlooked the wall, and from there, Rahab could see travelers who came into her city even before they entered the gates. If Rahab saw a handsome young man about to enter the city, she could lean out the window and call to him. Rahab could not have asked for a better place to live to try to get business for her business of prostitution. She was a woman who would sell her body for the pleasures of men. When men traveled great distances to come to her walled city, all she had to do is let them know that she was available, and she could pretty herself up and call down to them. How many hearts do you think that Rahab broke? How many homes do you think that Rahab destroyed? How many families do you think that Rahab tore apart? How many marriages do you think that Rahab ruined? और यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा राहब के बारे में। राहब कैसा उसका एक समय होगा, कैसा उसका जीवन होगा। राहब एक वैश्य थी। वो यरीहो के शहर में रहते थे और उसका जो घर था वो बिल्कुल बाहरी जगह पर था, जो जहाँ पर यरीहो का कह सकते हैं सुरक्षा रखने का एक दीवार होगा, या उस जगह का बाहरी जगह पर राहब का घर था। तो सोच कर देखिए, जब भी कोई भी बाहर से आता होगा आप उसको आराम से देख सकती होगी। वो दीवार पे से जो भी गेट में से उधर से एंटर करता होगा उसी जगह पर ठीक उसका घर था। तो जब राहब ने उन व्यक्तियों को देखा जिन्होंने शहर में एंट्री करी या वो लोगों से, तो उसने सोचा होगा, उसने बुलाया। और हो सकता है राहब ने उनसे अच्छी जगह नहीं मांगा रहने के लिए जहाँ पर वो अच्छा बिजनेस कर सके, अपने वैश्यावृत्ति को और बढ़ा सके, क्योंकि वो एक औरत थी। अपने शरीर को बेचकर आदमी लोगों को खुश कर कर वो पैसा कमाती थी। और जब ये लोग अपने उस जगह पर आए और जब उसने देखा कि वो लोग हैं, तो उसने उनसे बिजनेस के बारे में बात नहीं करी और उनसे अच्छी जगह के बारे में बात नहीं करी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राम ने कितने हृदय को तोड़ा होगा, कितने घर उसकी वजह से बर्बाद हुए होंगे, कितने परिवार टूटे होंगे, कितनी जो शादियां हैं वो खराब हुई होगी। और ये सब राहब ने किया, राहब वैश्य ने किया पैसों के लिए। Rahab did it all for money. It wasn't that she was homeless or living on the streets that forced her into this lifestyle. It wasn't that there was no one to love her, to encourage her, or to offer her emotional support. The Bible tells us her mother, her father, and her brothers and sisters lived right there in the same city. She sold her body because she loved money. All through the Bible, wherever her name is mentioned, right next to it are the words, the harlot or the prostitute. This is how she will always be remembered. Knowing Rahab's background,
How could Rahab enter into God's hall of fame? Did God make a mistake? We will see how Rahab's faith put her in Hebrews chapter 11. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी नहीं था जो उसे प्यार करे, उसको उत्साहित करे, या कोई उसको जो है मानसिक रूप से उसको सपोर्ट करे। और बाइबल हमें बताती है कि उसकी माँ भी है, परिवार वाले उधर ही रहते थे। वो वहाँ पर जो है शरीर को बेचकर पैसा कमाती थी। और जब भी बाइबल में उसका नाम आया है तो हर बार राहब के साथ एक वो शब्द जुड़ा होता था, राहब वैश्या। और इसी तरह वो जानी जाती थी। और उसके उसके बारे में जानने के बाद क्या परमेश्वर से कोई गलती हुआ कि परमेश्वर ने उसको जहाँ अब्राहम का नाम है, इसाक का नाम है, उस जगह पर आखिर में राहब का भी नाम रखा? वो क्यों रखा? क्या परमेश्वर से कोई गलती हुआ? I want to give you some background on Jericho. Jericho was a city on the plains just west of the Jordan River. It was the oldest city in the world at the time of Joshua. Jericho was in the promised land. Jericho was surrounded by a massive system of walls for protection. The outer wall was 6 feet wide and 20 feet high. The inner wall was 12 feet thick and 30 feet high. Between the walls was a guarded walkway about 15 feet wide. I'm telling you more about how massive the walls of Jericho were so that you can realize how big the miracle was when God brought the walls down. At the time of Joshua, Jericho contained 20 to 40,000 people. The people of Jericho were very prosperous. They worked hard by day and they partied by night. They filled their lives with every amusement, every comfort, and every pleasure. और यहाँ पर आइए हम कुछ जरीको के बारे में देखते हैं। जरीको यर्दन नदी के वेस्ट साइड में एक शहर था, सबसे पुरानी जो है शहर था यहोशू के समय में। और जो यरीहो था वो जो वाचा की जो जगह थी उसमें था। तो यरीहो चारों तरफ से काफी अच्छे सुरक्षित दीवारों से ढका हुआ था। सुरक्षित मतलब उस समय में बाहरी जो दीवारें होती थी वो काफी सुरक्षित की गई थी। जो आखिरी सबसे बाहरी दीवार थी वो 6 फीट चौड़ी थी और 20 फीट लंबी थी। उसी तरह उसके अंदर भी एक दीवार थी जो 12 फीट चौड़ी और 30 फीट लंबी थी। और उन दोनों दीवारों के बीच में जो वहाँ पर लोग हैं, गार्ड्स हैं, वो 15 फीट का जो उसमें चलते थे। तो मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, आप समझ सकें कि जो यरीहो की दीवार थी वो कितनी मजबूत थी और जो परमेश्वर के द्वारा किया हुआ जो चमत्कार है वो कितना बड़ा था कि परमेश्वर ने यरीहो की दीवार को नीचे ला दिया। उस समय में यहोशू जो था वहां पर यहोशू था। और यरीहो में 20 से लेके 40,000 लोग करीब करीब थे। और जो यरीहो के लोग थे बड़े उस टाइम पे तरक्की कर रहे थे, काम करते थे, दिन रात पार्टी भी करते थे। और उनका जीवन था पूरा मजे से वो लोग बिता रहे थे, खुशी से बिता रहे थे, सारी दुनियावी बातों को कर रहे थे। The people of Jericho didn't realize it, but they were people who were cursed of God. 40 years earlier, God had marked Jericho for total destruction because of their sin. Their days were up. They were a people that were about to be damned forever. This is the position of every person is in that has not accepted Jesus as their Savior. This is the position of every sinner. Destruction is coming. In John chapter 3 and verse 36, it says, "He who believes on the Son," that's Jesus, "has everlasting life, but he who believes not on the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him." If you died tonight, do you know whether you would go to heaven? Do you believe on the Son? You better make sure. Judgment and destruction were coming to Jericho because of their sin. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यरीहो के लोग थे उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया। वो अच्छे एक जीवन को बिता रहे थे, खुश थे, आनंदित थे, लेकिन परमेश्वर की तरफ से वो श्रापित थे। 40 साल पहले परमेश्वर ने यरीहो को, हालेलुया, वहां पर यरीहो के बारे में कुछ कहा। उनके पापों को की वजह से पूरी तरह यरीहो खत्म हो गया। और
जो वहाँ के लोग थे वो परमेश्वर की नज़र में श्रापित थे, और यही परिस्थिति हर एक उस व्यक्ति की है जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, बचाया नहीं गया, पापी है, और उसकी तरफ ये जो नाश है, नाश की परिस्थिति है, वो उसकी तरफ बढ़ रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 36वां वचन इस प्रकार से कहता है, ही जिसने यीशु मसीह पर, उसके बेटे पर विश्वास किया, उसके पास अनंत जीवन है, और जिसने विश्वास नहीं किया वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु अनंत काल की जो आग है उसमें जाकर पड़ेगा। और आज आप यदि मर जाते हैं तो क्या आप जानते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे? क्या आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? ये आपको सुनिश्चित करना है, ये आपको देखना है। हालेलुया। न्याय और नाश दोनों यरीहो की तरफ आ रहे थे उनके पाप की वजह से। और आइए देखते हैं यहोशू में। Let's pick up the story in Joshua chapter 2 and verse 1. And Joshua, the son of Nun, sent out Shittim to men to spy secretly, saying, go view the land, even Jericho. And they came into an harlot's house named Rahab and lodged there. Now, why did Joshua send out 2 spies? What tactical information did the spies come to Jericho to obtain? Did they need to know how thick the walls were? I don't think so. There's no way in their human strength that they could knock down these mammoth walls. Did they need to know what kind of weapons they need to defeat Jericho? I don't think so. Israel was advancing on Jericho at the command of God and with the power of God. God wasn't going to need any information the spies could provide. God was going to bring the walls of Jericho down and destroy the city. I ask this question again. Why did Joshua send out 2 spies? और यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक में उसका 2 अध्याय का पहला वचन में पढ़ते हैं, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेजे और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तो मैं आपसे पूछना मांगता हूं कि यहोशू ने वहां पर 2 लोगों को, 2 भेदियों को क्यों भेजा? क्या उधर का कोई अंदर का कोई बात जानने के लिए, या ये जानने के लिए उसकी दीवारें कितनी चौड़ी हैं, कितनी मोटी हैं, कितनी बार उस पर मारेंगे तो वो टूट के गिरेगी, या ये जानने के लिए कि वहां पर कितने हथियार हैं? मुझे नहीं लगता यरीहो में जाके उसने ये देखने के लिए भेजा हो, क्योंकि इसराइल यरीहो से ज्यादा सामर्थशाली था, परमेश्वर की आज्ञा में था, परमेश्वर की सामर्थ में था, तो उनको ये सब जानने का जरूरत नहीं था। तो मैं दोबारा ये सवाल पूछता हूँ, क्यों यहोशू ने उन 2 भेदियों को भेजा? Another question I have is, why did the spies go directly to Rahab's house? There were 20 to 40,000 people in many houses in Jericho. Why did they pick Rahab's house? Why would they go to the house of a prostitute? I believe God sent those spies to Rahab's house to witness to Rahab, to tell her about God, to prevent her from destruction or going to hell. और मैं दूसरा सवाल मेरा ये कि वो लोग क्यों राहब ही के घर में गए, जबकि वहां पे 40,000 के करीब घर थे, और क्यों उन्होंने चुना कि वो राहब के घर में जाएं? क्यों उन्होंने उस वैश्य के घर में जाने को चुना? और मुझे ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर ने उन 2 भेदियों को राहब के घर में जाने के लिए उनको प्रेरित किया, राहब के बारे में, ताकि गवाही हो सके, परमेश्वर के बारे में बताया जा सके, और उसको नरक से, अनंत काल की आग से बचाया जा सके। Rahab had a heart that was open to God. She had heard about God. She wanted God in her life, but she didn't know how to be saved. There are many people who want God in their lives, but they don't know how to be saved. I believe that is why God sent the spies. I believe that is why God sent the 2 spies to Rahab's house. She had an open heart to God. At some point in every person's life, God will send out a witness to share Jesus with you. If God can't send out a witness, he'll speak to you through circumstances or through your thoughts, your dreams, and your visions. और राहब के पास एक खुला हृदय था, जो परमेश्वर की तरफ खुला हुआ था। उसने परमेश्वर के बारे में सुना, वो चाहती थी परमेश्वर को अपनी जिंदगी में, पर वो ये नहीं जानती थी कि कैसे बचाया जाए, कैसे वो बचाई जा सकती है।
और वहां पर बहुत सारे लोग थे जो परमेश्वर के बारे में जानते थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि उसके जीवन को कैसे बचाना है। और मुझे लगता है कि परमेश्वर ने खुद वहां पर वो दो भेदियों को भेजा। दो भेदियों को इसलिए भेजा ताकि राहब का जो है हृदय, जो परमेश्वर के लिए खुला था, वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर सके। और मैं यहाँ पर आपको बताना मांगते हैं, एक समय आपके जीवन में ऐसा आता है कि परमेश्वर आपके जीवन में किसी ना किसी को भेजता है ताकि वो परमेश्वर की गवाही को आपके साथ बांट सके, उनके जीवन की गवाही को आपके साथ बांट सके। और अगर परमेश्वर ना भेजे, अगर कई बार वो नहीं भेजता, तो आपकी परिस्थितियों के द्वारा, आपके स्वप्न के द्वारा, आपके दर्शन के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, वो कभी भी चुप नहीं रह सकता। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। तो या तो हो सकता है वो किसी व्यक्ति को भेजकर आपसे बात करें, आपकी परिस्थिति से, वचन से, स्वप्न से, दर्शन से आपसे बात करे। How you respond to that witness will determine your eternal destiny, heaven or hell. I have to tell you, at one time in my life, I was pretty hard toward God when the witness came, and I did not respond in the proper manner. I was in graduate school at the University of Wisconsin in Madison. I bought gas. I went into the service to pay, and after I paid for the gas, the lady behind the counter gave me a tract that shared Jesus. I got so angry. I said, "Look, lady, I buy gas here and not religion." I threw the tract down and stormed out the door. That lady must have thought there was no hope for me. Fortunately, God sent me another witness through my circumstances. My first wife left me for another man. And when my life was being destroyed, I finally cried out to God and God saved me. It changed my life. This happened when I was 28 years old. My decision for Christ was the best decision in my life. God didn't have to give me a second chance, but praise God, He did. When the witness comes from God, do like Rahab did, respond with a good heart. It will determine your eternal destiny, heaven or hell. God will always give bread to a hungry heart. मैन, और ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उत्तर देते हैं जब कोई आपके पास वो आपके अनंत काल के जीवन को लेकर आता है, चाहे वो नर्क हो या स्वर्ग हो, उसको आपको कैसे उत्तर देना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक घटना के बारे में। जब मैं एक बार, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था और परमेश्वर की तरफ मेरा हृदय बड़ा कठोर हुआ करता था। और मैं उस टाइम पे जो है ग्रेजुएट हुआ था विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से, मेडिसिन से। और मैं गैस भरवाने गया, वहाँ पर मैं जो है पैसा दे रहा था गैस का। और जैसे ही मैंने उसको पे कर दिया, तो एक औरत मेरे पीछे से चल कर आई और उसने मेरे साथ वो ट्रैक्ट को बांटा जिसमें यीशु मसीह के बारे में था। और मैंने बहुत गुस्सा किया, मैंने उसको डांट और चिल्लाया। और मैंने कहा, देखो औरत, सुनो, मैं यहाँ पर गैस को खरीदने आया हूँ और कोई धर्म को नहीं। और वो ट्रैक जो था मैंने उधर फेंक दिया। और उसने सोचा होगा, उस औरत ने, कि इसको तो कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक व्यक्ति को भेजा। मेरा जो परिस्थिति जिससे मैं गुजर रहा था, उसे परमेश्वर ने मुझे निकाला। मेरा जो बीवी था पहला, उसने दूसरा आदमी के साथ भाग गया। मुझे मेरा मेरा जीवन बहुत ही बिखर गया और मैंने परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर मुझे बचाओ। और मेरा जीवन को परमेश्वर ने बदला। और ये हुआ जब मैं 28 साल का था। मैंने एक निर्णय को लिया कि मैं मसीह के साथ चलूंगा, और मसीह के साथ चलना मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम एक निर्णय साबित हुआ। परमेश्वर को मुझे दूसरा मौका नहीं देना था, लेकिन फिर भी उसने दिया, और परमेश्वर को इसके लिए महिमा हो। तो जब भी कोई भी गवाही देने के लिए आपके परमेश्वर के पास, परमेश्वर के तरफ से आपके पास आता है, जो राहब ने जिस तरह से करा, राहब ने जैसे विश्वास के साथ करा, राहब ने जैसे अपने हृदय को खोला, वैसे ही हमको भी करना है। और ये आपके अनंत काल के जीवन को निर्धारित करता है। परमेश्वर हमेशा उसको रोटी देता है जो हृदय से भूखे हैं। वचन भी कहता है, जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। In Joshua chapter 2 and verses 9 through 11, it says, "Then she said unto the men, I know that the Lord has given you the land, and your terror is fallen upon us. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt,
and what you did unto the two kings of the Amorites who were on the other side of the Jordan, Cheyenne and Og, whom you utterly destroyed. And as soon as we heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, he is God in heaven and above and in the earth beneath. और आइए हम देखते हैं यहोशू 2 का उसका 9 से 11 तक हम पढ़ते हैं। वे इन पुरुष से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। In verse 10, Rahab said, we have heard. I want to ask you, are you hearing? Do you hear the Lord? In verse 9, Rahab said, I know the Lord has given you this land. Notice Rahab knew that destruction was coming to Jericho. She said, I know the Lord has given you this land. Rahab didn't say God was unjust. Rahab didn't try to excuse herself. Rahab knew that she had sinned against God. Rahab knew that she had hurt many people. Rahab's heart was convicted. Rahab knew that she deserved God's punishment, but she reached out to God for salvation and mercy. और यहाँ पर हम 10वें वचन में इस प्रकार से लिखा, राहाब ने कहा हमने सुना। मैं आज के सुबह में, कुछ जगह पर सुबह है कुछ जगह पर शाम, मैं आज के अभी के समय में आपसे बताना मांगता हूँ कि क्या आप सुन रहे हैं? क्या हम वाकई परमेश्वर को सुन रहे हैं? जब इस तरह की बातें हमारे पास आती है, या तो हम उसको अनदेखा करते हैं या हम वाकई में उसको सुन रहे हैं। 9वें वचन में इस प्रकार से राहाब ने किया कि हमने देखा कि परमेश्वर ने तुम्हारे सामने क्या किया। और यहाँ पर देखिए, राहाब ने उस बात को देखा, उस नाश को देखा जो यरीहो की तरफ बढ़ रहा था। उसने कहा कि मैं जानती हूँ परमेश्वर ने ये जगह तुमको दे दिया है। और परमेश्वर, उस राहाब ने ऐसे ही नहीं बोला, राहाब ने बोला मैं जानती हूँ परमेश्वर ने ये जगह तुम्हें दे दिया है और परमेश्वर, तुम्हारा जो परमेश्वर है वाकई में परमेश्वर है। उसने खुद को बचाने के लिए कोई वहां पर बहाना नहीं बनाया। वो जानती थी उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और उसने जानती थी उसने बहुत लोगों के दिल को दुखाया है और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी। और वो जानती थी कि वो परमेश्वर की जो न्याय पड़ेगा उसके लिए वो पूरी तरह उसमें जो भी परमेश्वर सजा देगा वो उसके लायक है। लेकिन वो परमेश्वर तक पहुंची, वो चाहती थी कि परमेश्वर का दया उस पर आए, परमेश्वर का उद्धार उसके अंदर हो जाए। In Joshua chapter 2, verses 12 and 13, it says, now therefore, I pray you, swear unto me by the Lord, since I have shown kindness unto you, that you will show kindness unto my father's house, and give me a true token, that you may save alive my father and my mother and my brethren and my sisters and all they have, and deliver our lives from death. Rahab's pleas were not just for her, but also for her family. Rahab's pleas were not just for her, but also her family. और यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू 2 उसका 12-13 इस प्रकार से लिखा, मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों बहनों और जो कुछ उनका है उन सभी को जीवित रख छोड़ो और हम सबको प्राण मरने से बचाओगे। तो यहाँ पर उसने केवल अपने लिए नहीं परंतु अपने परिवार के लिए भी यहाँ पर उसको बोला। और उसके बाद जो हम राहाब के विषय में देखते हैं, उसने केवल अपने आप के बारे में नहीं सोचा, यहाँ परिवार का भी उसको एक उसके बारे में सोच था। वो परिवार को भी बचाना चाहती थी। The spies responded by telling her what to do. This is found in Joshua chapter 2, verses 18 through 20. Behold, when you come into the land, you shall bind this line of scarlet thread in the window which you did let us down by. And you shall bring your father and your mother and your brethren and all of your father's household home unto you. And it shall be that whosoever shall go out the doors of your house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless. And whosoever shall be with you in the house,
his blood will be on our head, if any hand be on him. And if you utter this business, then we will not honor your oath, which you have made us swear. So this is what Rahab had to do to honor the agreement with the spies. She had to keep a red cord out the window. She had to bring her family into the house, her house, her father, her mother, her brothers, and her sisters, and she could not tell anyone about the spies' business. और यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू उसका दूसरा अध्याय और उसका 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से जो भेदिए थे उन्होंने बोला, सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसे वहीं उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा करके रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर या किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर होगा। फिर यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट करे तो तू जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। तो यहाँ पर राहाब को कुछ बातों को करना था। यहाँ पर ये वचन को हम देखते हैं, कुछ बातों को उन्होंने बोला करने के लिए। वो ये था कि सबसे पहले वो लाल जो धागा है, लाल सूत है, उसको वो खिड़की से बाहर निकाल कर रखना है और अपने परिवारजनों को, अपने भाइयों को, बहनों को, माता पिता को उससे लेकर आना है। तीसरा, वो ये बात को किसी को नहीं बताना है। I want to look at some aspects of Rahab's faith. It was a saving faith. The red cord points to the blood of Jesus. The spies told Rahab she must attach the red cord to her house, throw it out the window, and keep it there for everyone to see. In verse 21, Rahab said, according to your words, so be it. And Rahab had to put her faith in what the red cord represented, which was the blood of Jesus. Rahab had to confess her sins and put her faith in Jesus. In John 3:16, it says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. This is the conditions that God gives us today. We're to ask Jesus to forgive us. We're to put our faith in Jesus and what he did at the cross. And then the blood of Jesus will wash away our sins. Will you say, as Rahab did, according to your words, so be it? Salvation is simple. A child could do it. Salvation today from the wrath of God is simple. All we have to do is ask Jesus to forgive our sins, put our faith in Jesus and what he did at the cross. Will you do it? और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने उसके विश्वास के बारे में, क्यों उसे विश्वास किया, जरा हम देखते हैं। वो जो लाल धागा था यीशु मसीह के लहू को दिखाता है और भेदियों ने राहाब को कहा वो जो लाल डोरी थी उसे खिड़की से बाहर निकाल के डालना है, वहां पर रखना, ताकि हर कोई उसको देख सके। और 21वें वचन में राहाब ने कहा तुम्हारे शब्दों के, तुम्हारे वचन के अनुसार हो, क्योंकि राहाब ने वहां पर अपना विश्वास उस जो उनकी बात है उस पर रखा, वो लाल डोरी पर रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यीशु मसीह के लहू को दिखाता है। राहाब ने अपने पापों को अंगीकार किया, स्वीकार किया और अपने जो है विश्वास को यीशु मसीह के लहू पर रखा। और यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी प्रकार की परिस्थिति परमेश्वर आज हम सबके सामने रखता है। वो चाहता है कि हम अपने पापों की क्षमा यीशु मसीह से मांगे, हम अपने विश्वास को यीशु मसीह पर रखें और जो कुछ उसने क्रूस पर किया उस पर रखें, ताकि यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे सारे पापों को धो दे। तो क्या आप भी वही कहेंगे जो राहाब ने कहा कि आपके वचन के अनुसार हो? क्या आपका हृदय भी उतना खुला हुआ है परमेश्वर की ओर? और उद्धार बहुत ही आसान है, एक बच्चा पा सकता है। आपको क्या करना है? पर आज जो उद्धार पाना परमेश्वर की आग में गिरने से ज्यादा आसान है। और हमें क्या करना है? बहुत ही आसान बात है, हमें अपने पापों का क्षमा मांगना है, यीशु मसीह को विश्वास करना है और जो कुछ उसने क्रूस पर किया उसको विश्वास करना है, यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगना है। तो क्या आप ये करने को तैयार हैं? Rahab's faith was a singular faith. It is the easiest thing in the world to believe what everybody else does, but it is very difficult to believe something when no one else does. There were 20 to 40,000 people in Jericho. They did not believe what Rahab did, but Rahab believed anyway. Rahab stood on her faith alone.
It is said that dead fish always float downstream. It is only a living fish that can swim upstream against the current. और यहाँ पर हम देखते हैं राहब का जो विश्वास था, एक अकेले व्यक्ति का विश्वास था। और ये बहुत आसान बात है समाज को विश्वास करने के लिए, जो हर कोई विश्वास कर सकता है लेकिन करता नहीं है। और जो सब विश्वास करते हैं उसको विश्वास करना बहुत आसान है, लेकिन जो सब नहीं विश्वास करते उसको थोड़ा विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। जो हम देखते हैं ना, अगर कोई दुनिया में सब कोई बात अच्छी बोलेगा तो उस बात को अच्छा बोलना बहुत आसान है, जबकि अगर पूरा समाज एक चीज़ के खिलाफ है तो उसको उसके खिलाफ जाकर अच्छा बोलना थोड़ा मुश्किल है। और आप देखिए 40,000 लोग, करीब करीब 40,000 लोग यरीहो में रहते थे, और उन्होंने राहब को विश्वास नहीं किया, और उन्होंने राहब ने जो किया उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन राहब को विश्वास था, उसको विश्वास था उस यीशु मसीह पर, और उसने अपने विश्वास के द्वारा अकेले ही वो खड़ी रही, वो मजबूती से रही। और इस प्रकार से कहा गया, जो मरी हुई मच्छी होती है वो आराम से ऊपर तैरती रहती है, लेकिन केवल जिंदा फिश ही ऊपर नीचे तैर सकती है। There are many more people going to hell than there are to heaven. In Matthew chapter 7, verses 13 and 14, it says, "Enter you in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and many there be that go in thereat. Because straight is the gate and narrow is the way which leads to life, and few there be that find it." I don't think that you should follow the crowd on the issue of your salvation. Do you? I don't think you should follow the crowd on the issue of your salvation. Do you? और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि स्वर्ग में लोग जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा लोग जाने के लिए नरक में तैयार हैं। वो क्यों है? वचन के आधार पे मैं बात कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय का 13 और 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ते हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है, और वह मार्ग सरल है, ये भी लिखा है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिए, बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो यानी कि देखिए, जो आसान है, सरल है, उसमें बहुत प्रवेश करेंगे। जो थोड़ा मुश्किल है, जो जीवन को पहुंचाता है, उसमें थोड़े लोग प्रवेश करेंगे। सो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो नरक में जाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और मैं नहीं मानता कि आप जो है उस भीड़ को पीछे पीछे जाना चाहेंगे और उस भीड़ के पीछे जाकर नरक में गिरना चाहेंगे। और मैं नहीं समझता ये बात आपके लिए सही है। मैं चाहता हूँ कि आप उद्धार की तरफ दौड़ें, परमेश्वर के पहचाने, और उस जो है छोटे जो सकेत, जो बहुत ही ज्यादा सकेत फाटक है, मुश्किल है, परंतु जीवन का है, उसमें आप प्रवेश करें। क्या आप करेंगे? There's one place where everyone believes there's a God. There's one place where everyone believes that Jesus is the Savior. There's one place where everyone knows there's a heaven and hell. Do you know where that is? Hell. There are no non-believers in hell. They all know there is a God. They all know there is a Savior. But for them, it is too late. Despite God's witness to them, they rejected him and destruction came. The good thing, it's not too late for all of you that are hearing this message. You can still respond to the call of God. और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि एक जगह है सबके लिए, सब विश्वासियों के लिए, जहाँ पर परमेश्वर होगा। और वहाँ पर मैं आपको बताना मांगता हूँ, एक जगह है हर एक उस विश्वासी के लिए जो विश्वास करता है यीशु मसीह जो है उद्धार करता है, परमेश्वर है। और एक जगह है उस व्यक्ति के लिए जिसका नाम स्वर्ग है, और एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम नरक है। वहां पर कोई नॉन बिलीवर या विश्वास करने वाला व्यक्ति, हम नहीं कर रहे जो परमेश्वर को जानता नहीं है वो व्यक्ति होगा, नहीं। परमेश्वर के बारे में सुना होगा, परमेश्वर को जानता वो व्यक्ति होगा, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया होगा। उस तक परमेश्वर का वचन पहुंचा होगा, लेकिन विश्वास नहीं किया होगा। और उनके लिए अब इस समय पे बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का गवाह होना वो चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने नाश को चुना और उन पर नाश आ पड़ा, वो नष्ट हो गए।
और आज एक अच्छी बात ये है, मैं और आप जीवित हैं, तो हमारे लिए अभी भी देर नहीं हुई। अगर आप मैसेज को सुन रहे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी परमेश्वर के शब्द को उत्तर दे सकते हैं, परमेश्वर के शब्द को हाँ में, कि हाँ परमेश्वर, मेरा हृदय खुला है, मैं सुन रहा हूँ परमेश्वर, इस तरह से बोल के हम परमेश्वर की ओर झुक सकते हैं, परमेश्वर की ओर जा सकते हैं। Rahab's faith was a stable faith. Think of Rahab. The spies did not tell Rahab when they would come back. The spies did not tell Rahab when Israel would attack. She dutifully put out the red cord out, and she had to wait. Faith waits for the promises of God to be fulfilled. और यहाँ पे देखिए राहाब का विश्वास कितना मजबूत विश्वास है। सोच कर देखिए, जो भेदी थे उन्होंने ये नहीं बोला हम कब वापस आएंगे, या इज़राइल जो है कब उन पर अटैक करेगा, लेकिन जो उसको बोला उसने वो किया। वो लाल धागा को, लाल डोरी को उसने डाल दिया और इंतजार करने लगी। और यही होता है विश्वास, जब हमारे अंदर होता है तो हम इंतजार करते हैं परमेश्वर के वायदों के पूरा होने का। वो विश्वास हमें इंतजार करने के लिए मदद करता है। Finally, Israel came. The Lord parted the Jordan River for Israel to cross. That must have strengthened Rahab's faith. When Israel did come the first day, the priests just blew some horns, and the army of Israel marched all the way around the massive walls of Jericho. That doesn't sound like a brilliant military tactic, does it? They did it the same thing on the second day, and on the third day, and on the fourth day, and on the fifth day, and on the sixth day. Think of how Rahab's faith was being tried, but Rahab kept the red cord hanging out the window. Think of what her family was saying. Think of what the people of Jericho were saying. How did Rahab keep her family in the house all those days? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आखिर में इज़राइल लोग आ गए, उन्होंने यरदन नदी को पार किया, तो हो सकता है राहाब का विश्वास मजबूत हुआ, अरे मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, अब जाके ये लोग आए हैं। तो जब पहले दिन वो आए तो उन्होंने जो वहाँ के जो याजक लोग थे उन्होंने वो बजाया, जो तुरही थी, जो बाजे थे उसको बजाया, और दीवारों के चारों तरफ घूमने लगे। और ये कोई अच्छी जो एक नीति नहीं लग रही थी, जो जो अच्छे लोग, जो अच्छी तरह मिलिट्री की नीति नहीं थी। इस तरीके से युद्ध को जीता नहीं जाता था। लेकिन वो जो साधारण तौर पे पहले दिन उन्होंने यरीहो के चारों तरफ चक्कर लगाया, दूसरे दिन लगाया, तीसरे दिन लगाया, चौथे दिन लगाया, पांचवें दिन लगाया, छठे दिन लगाया। और सोच के देखिए राहाब के परिवार के बारे में, उसके विश्वास के बारे में, कितना विश्वास उसने किया। उसने वो लाल धागे को वहां पर डाल दिया और वहां पर उसके परिवार को उसने रखा 7 दिन तक। उसके परिवार भी वाले भी बोलते होंगे अरे क्या हो रहा है ये, और कैसे उसने रखा होगा 7 दिन उनको अपने घर में। और आखिर में 7वें दिन जो इज़राइल के लोग थे वो वहां पर, उन्होंने 7वें दिन वहां पर यरीहो में चक्कर लगाया, और जो याजक लोग थे उन्होंने तुरही को फूका और वो लोग चिल्लाए। But then the children of Israel came out on the seventh day. This time they marched around Jericho 7 times. The priests blew the horns. The people of Israel shouted, and the walls of Jericho came tumbling down. When the dust settled, only one house was left standing, Rahab's house. Rahab and her family were saved from destruction. In life as Christians, we have trials, we have difficult times, but we must have a stable faith that waits for the promises of God to be fulfilled. और 7 जब दिन तक उन्होंने चक्कर लगाया, 7वें दिन उन्होंने तुरही फूकी और चिल्लाए वो लोग जोर से, और यरीहो का दीवार नीचे गिर गया। सोच के देखिए, जब यरीहो का दीवार नीचे गिरा होगा, चारों तरफ धूल मिट्टी होगा, और फाइनली जब धूल मिट्टी खत्म हुआ तो एक ही घर बचा हुआ था, वो था राहाब का घर। उसका परिवार, और राहाब और उसका परिवार इस पूरे नाश से बचे हुए थे। और यही होता है मसीह जीवन, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, मुश्किल समय होता है, लेकिन हमें अपने विश्वास में मजबूत होना होता है, और वही हमें मदद करता है परमेश्वर के वायदे को पूरा करने के लिए, उसकी बाट जोने के लिए। Rahab had a self-denying faith. She risked her life for the sake of the spies. She knew if the spies were found in her house, she would be put to death. Then she would not only be known as Rahab the harlot, but she would become known as Rahab the traitor. Rahab's faith was willing to risk all for Christ. Are you willing to risk all for Christ? और यहाँ पर हम देखते हैं उसने बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को
मुश्किल में डालते हुए उसने उन लोगों को बचाया, जो भेदी थे उसने उन लोगों को बचाया। और अगर किसी को पता लग जाता तो शायद हो सकता उसको मृत्युदंड हो जाता। और वो केवल राहब वैश्य के तौर पे नहीं जाने गए, परंतु वो जानी गई राहब धोखेबाज के तौर पे भी। लेकिन राहब ने अपने विश्वास को उस चुनौती पे रख के उसने मसीह पे विश्वास किया और सब कुछ खतरे में डाल दिया। उसने केवल विश्वास किया। Rahab's faith cared about the lost. Immediately, when Rahab made her decision for God, she wanted her father, her mother, her brothers, her sisters safe from the destruction of God. Do you have a faith that is so vibrant that you will share Jesus with your family and those that you love? To me, it is hardest to share Christ with my family. Why? I love them and I don't want them to reject me. Also, my family knows everything about me. They knew John when he wasn't saved. They've seen bad John come out many times probably. Believe me, my family knows my weaknesses, and because of that, it is hard for them to let me share Christ with them. और जब आप जान सकते हैं, जब राहब विश्वास उसने परमेश्वर पे किया, जो पहली बात उसके मन में आई कि जो लोग और भी खोए हो उनका नाश ना हो। अपने परिवार के बारे में उसने जब एक निर्णय लिया कि परमेश्वर के साथ चलेगी, तो वो चाहती थी जिस परमेश्वर के बारे में उसने सुना है, जिस परमेश्वर जो बचा सकता है, वो उसके परिवार को भी बचाए। और उसने चाहा कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई बहन सब इस नाश से बचाए जा सके। तो क्या आपके अंदर उतना जीवंत एक विश्वास है कि आप यीशु मसीह के साथ अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन लोगों के साथ बांट सके जो विश्वास नहीं करते। तो मेरे लिए, मैं अपने बताते हैं कि मेरे लिए यीशु मसीह को उनके साथ बांटना बड़ा मुश्किल था। मैं आपको बताना मांगते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं उनको जो है उनको ठुकराता नहीं हूँ, लेकिन वो परिवार हैं, वो मेरे जीवन को जानते हैं, मेरी अच्छी बुरी बातों को बारे में जानते हैं। और वो जानते थे कि मैं बचाया नहीं गया था। उन्होंने बुरा एक जॉन, जो मेरा बुरा स्वभाव था, वो देखा है। और विश्वास कीजिए, मेरा परिवार मेरी कमजोरी को जानता है, और इसी वजह से मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उनके साथ यीशु मसीह को बांटना, लेकिन मैंने किया। Think of Rahab. She was a prostitute. She had probably embarrassed her family many times. Why would her family listen to her? How could Rahab get them to stay in her home all this time, especially her house, because Rahab was a prostitute? They knew what happened there. It was because of her faith that they listened to her. Her family knew that Rahab loved them. Her family sensed that Rahab really believed what she was telling them. That's why they responded to her plea, because of her love and faith. I love my family. If I love my family, I must share Christ with them. Do you have that kind of faith that you will share Christ with others? Rahab did. और सोच के देखिए, राहब एक वैश्य थी, और कई बार हो सकता है उसके परिवारजन उसकी वजह से कई बार शर्मिंदा हुए हों, लेकिन क्यों उसके परिवार वालों ने उसको सुना और विश्वास करके घर में आ गए? कैसे राहब ने उनको मनाया अपने घर में रहने के लिए, जबकि उस समय में वैश्यवृत्ति में सब कुछ उसके घर में होता था? ये हुआ क्योंकि उसके विश्वास के द्वारा उसने उनको सुना। वो जानती थी कि परमेश्वर, राहब उनसे प्यार करते हैं, और उसके परिवार ने महसूस किया कि राहब ने सचमुच विश्वास किया और जो कुछ वो बोल रही है वो सच है। और इसीलिए उसका रोने पर, उसके दुहाई जब उसने दी कि तुम नाश हो जाओगे, जब उनको बोला, तो उस पर विश्वास किया, उसके प्रेम की वजह से, उसके विश्वास की वजह से। तो यदि मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, प्रियजनों से प्यार करता हूँ, मुझे जरूर से डर होगा कि कोई भी नाश ना हो। मैं जरूर से उसके साथ मसीह को बांटूंगा। और अगर आपके अंदर ऐसा जीवंत विश्वास है, तो आप जरूर से यीशु मसीह को लोगों के साथ बांटेंगे। राहब ने किया। Now you know why Rahab is in Hebrews chapter 11, God's hall of fame, God's hall of faith. Rahab had a faith that pleased God. By faith, Rahab perished not. By faith, Rahab perished not. और अब ये आप समझ गए होंगे कि क्यों राहब का नाम, राहब जैसी वैश्या का नाम इब्रानी के 11वें अध्याय में है। विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। विश्वास के द्वारा वो नाश नहीं हुई, परंतु बचाई गई। और परमेश्वर के इधर इस अध्याय में परमेश्वर ने उसका भी जिक्र किया, वो केवल एक विश्वास की वजह से था। If you're listening to this message, God has sent this message to you.
It's a witness from God. How you respond to the witness will determine your eternal future, heaven or hell. Rahab responded positively. She accepted God. She wanted God. Will you do that with me? और अब आप समझ गए होंगे, और यदि ये मैसेज आपके पास पहुंचा, आप सुन रहे हैं, तो क्या आप तैयार हैं उसी तरीके से जो है एक्सेप्ट करने के लिए जैसे राहाब ने किया? क्या आप अपने दिल खोलने को तैयार हैं आज के दिन? क्या आप तैयार हैं क्या परमेश्वर को ग्रहण करें उस खुले दिल के साथ, जैसे राहाब ने विश्वास किया, राहाब ने किया? If you'd like to accept your Jesus as your Lord and Savior, please pray this prayer after me. और यदि आप वाकई में यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे पीछे बोलें। Father, I come to you in the precious name of Jesus. और पिता, मैं आपके पास आता हूँ आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। And Jesus, I ask you to forgive my sins and come into my life as my Lord and Savior. और पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप मेरे पापों को क्षमा करें और मेरे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आप आ जाएं। I do not put my faith in anything that I do, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. और पिता, मैं उस बातों पर नहीं जो मैं खुद करता हूँ, परंतु उन बातों पर विश्वास करता हूँ जो यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर किया। यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। I ask you for the gift of eternal life, and I receive it, and I thank you for it. और मैं आपसे उस अनंत काल के जीवन को मांगता हूँ, मैंने इसको पाया और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. और यीशु मसीह, आप मेरे जीवन के प्रभु हो जाएं और मुझे पूरी तरीके से मेरे पाप से मुझे छुटकारा दें। Amen. आमेन।